Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we shall be discussing the principle of vicarious liability under Todd's law. आज की वीडियो को शुरू करने से पहले it would mean a lot to us if you could subscribe to our channel. Let's begin. Generally, a human is responsible for the wrongs he or she has done, and it is rarely that we are responsible for the wrongs done by the other people. When we are held liable or responsible for the wrong done by others, it is called vicarious liability. साधारण शब्दों में अगर किसी और की गलती के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाए, उसे vicarious liability कहा जाता है. गलती किसी और की है, बट आई एम हेल्ड बीइंग रिस्पॉन्सिबल या आई एम हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड that is what is called the principle of vicarious liability. Samuel said, in general, a person is responsible only for his acts, but there are exceptional cases in which the law imposes on him vicarious responsibility for the acts of another, however blameless himself. So यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि if there are two people, let's say A and B, the wrong has been committed by B, if, and A is being held responsible for the wrong done by B. So इन रियलिटी ए इज ब्लेमलेस. ए पे आप कोई ब्लेम नहीं डाल सकते क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी. बट कई सेट ऑफ रिलेशनशिप्स में वाइकीरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है. देर आर फ्यू सेट ऑफ रिलेशनशिप इन विच इफ वन पर्सन कमिट्स द रॉन्ग, द अदर इज ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. कुछ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे कि मास्टर सर्वेंट, जैसे कि पार्टनर्स. इन दिस एस्पेक्ट, इन दीज relationships, just quoting an instance, for the wrongful act on the part of one, the other is also held responsible. दो मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं vicarious liability के, which have been put in the form of maxims. जब हम legal maxims की बात करते हैं, we are talking about certain quotations which are in different language, mostly which has been seen in Latin mostly, and they mean something for the purpose of law. So, firstly, it is qui fecit per alium fecit per se, and second is respondeat superior. So, these are two principles of vicarious liability. When we talk about qui fecit per alium fecit per se, it literally means he who does an act through another is deemed to do it himself in law. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरे के थ्रू एक एक्ट कर रहा है तो एज पर लॉ ये उसने खुद ही किया है. वो थ्रू समवन एक एक्ट कर रहा था, ए वाया बी एक्ट कर रहा था, तो लॉ की नज़र में ये एक्ट ए ने खुद ही किया है, बी ने नहीं किया है. A master's responsibility with respect to servants act had its origin in this principle. Master servant relationship is something which is considered the cornerstone of vicarious liability. ये एक सीड था जिससे ये प्रिंसिपल अराइज हुआ. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि when a person who asks another to do a certain act in his absence necessarily leaves to determine when an act is to be performed and trust him for how it is done as per circumstances that arise. रीजन क्या है? मान लीजिए एक मास्टर और सर्वेंट है. उनमें से जो मास्टर है वो अपनी एब्सेंस में अपने सर्वेंट को एक एक्ट करने के लिए कहता है और वो उस पर छोड़ देता है कि वो डिसाइड करे कि कब एक्ट को परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है. जैसे सर्कमस्टांसेस अराइज हों उस हिसाब से वो सर्वेंट डिटरमाइन कर सकता है. सो दैट इज़ द पर्टिकुलर रीज़न वाया विच वी एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर मैक्सिम, और टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स कि ये पर्टिकुलर रीज़न है within the realm of vicarious liability, or behind the principle of vicarious liability, to be specific. Second principle is respondeat superior. The maxim literally translate to let the master answer, which means कि
सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है for the act of the inferior or the subordinate, and also alternatively it means कि let the principal be liable, which obviously means the same thing in gist. इस रूल का ओरिजिन है लीगल प्रिजम्पशन पे कि हर एक्ट जो सर्वेंट करता है और वो मास्टर के बिजनेस से रिलेटेड है, वो मास्टर की अथॉरिटी से हो रहा है, उसकी परमिशन से हो रहा है, चाहे वो परमिशन एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है। जब एक्सप्रेस परमिशन की बात करते हैं तो वो वर्ड्स के थ्रू होती है, स्पोकन या रिटन वर्ड्स के थ्रू होती है। जब इम्प्लाइड परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थ्रू सर्कमस्टांसेस और द एक्ट्स सराउंडिंग द पर्टिकुलर इंस्टेंस से डिसाइड होते हैं। जैसे भी अथॉरिटी हो, चाहे एक्सप्रेस है चाहे इम्प्लाइड है, यही प्रिजम्पशन अराइज होता है कि अगर कोई एक्ट सर्वेंट कर रहा है और वो मास्टर के बिजनेस से रिलेटेड है, तो मास्टर की अथॉरिटी उसमें मौजूद है, मास्टर की पावर उसमें मौजूद है, एंड क्योंकि मास्टर की पावर उसमें मौजूद है तो वो मास्टर का ही एक्ट हुआ। सो विच इन टर्न ट्रांसलेट्स टू द फैक्ट कि लेट द मास्टर आंसर बिकॉज ही हिमसेल्फ इज डूइंग द एक्ट वाया द सर्वेंट। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की जो वाइकेरियस लाइबिलिटी के एम्बिट के अंडर आते हैं। Master and servant, as I mentioned, any act performed by the servant in course of his or her employment makes the master liable for such activities, and it obviously makes the servant liable too. दोनों लाइबल है बट मास्टर भी लाइबल है सर्वेंट के एक्ट के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इन द फोर्थ कमिंग स्लाइड्स। If the master has to be held responsible for the tort of his servant, the following conditions should be met. अगर मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होनी है तो ये कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए। फर्स्टली, सर्वेंट ने वो टॉट कमिट किया होना चाहिए। टॉट कहने का मतलब है सिविल रॉन्ग। within the branch of civil law, if something is wrong or if something is not appropriate for society, it is considered as a tort. Tort is a word which has been derived from totem belonging to another language, which basically means twisted or crooked. तो tort basically किसी भी civil wrong को tort कहा जाता है. So if the servant committed the tort and she committed the tort while acting in course of employment, course of employment हम next slide में discuss करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्वेंट ने वो टॉट कमिट किया है और उसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्ट करते हुए वो टॉट कमिट किया है, तभी मास्टर को लाइबल होल्ड किया जाएगा। अगर ये दोनों प्रिंसिपल्स मौजूद नहीं है, कोएग्जिस्ट नहीं करते, तो मास्टर को लाइबल होल्ड नहीं किया जाएगा। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है या कब माना जाएगा कि सर्वेंट जो है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्ट कर रहा था, कि जिस मोड में एक्ट किया गया है वो रॉन्गफुल है या अनऑथराइज्ड है। मतलब जिस तरीके से एक्ट को किया जा रहा है, जो मैनर है, जो प्रोसेस है, वो जो है वो या तो खुद ही गलत है या फिर उसके लिए परमिशन नहीं मिली थी। द मैनर वॉज नॉट वारंटेड एंड द मैनर वॉज नॉट परमिटेड फॉर। किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है, राइट? सो ऐसा कोई तरीका यूज़ किया जा रहा है एक एक्ट को करने का, वो अपने आप में ही रॉन्गफुल है या फिर उसकी परमिशन नहीं मिली थी, या तो फिर जो रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है उसको करने की अथॉरिटी ही मास्टर ने दी हो, तब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश हो पाता है। एंड देन इट इज सेड दैट अ सर्वेंट वाज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए एक केस देख लेते हैं, बालदेव राज वर्सेस देववती, विच इज अ केस फ्रॉम 1985. A truck driver was sitting beside the conductor and permitted the conductor to drive. कंडक्टर का काम नहीं है ड्राइव करना, पर ट्रक ड्राइवर ने उसको ड्राइव करने के लिए बोल दिया. The conductor caused an accident with a rickshaw. As a consequence, the rickshaw passenger died. Obviously, कंडक्टर का काम नहीं है ड्राइव करने का, जैसे कि मैंने कहा, but because the truck driver gave him the permission and he drove and he caused an accident with the rickshaw and the rickshaw passenger died. इस केस में ये होल्ड किया गया कि जो ड्राइवर का एक्ट था परमिशन देने का फॉर द कंडक्टर टू ड्राइव was a breach of duty by the driver.
वो अपनी ड्यूटी के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा था, उसने वो अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट गया जब उसने ये परमिशन दी। एंड दिस पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज कंसिडर मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। जस्ट टू स्टेट अ बेसिक, टॉर्ट का बेसिक नेचर ही ब्रीच ऑफ ड्यूटी से अराइज होता है। when two people are existing in a society they have a right and duty towards each other। जो भी दो लोग सोसाइटी में हैं उनका एक दूसरे की तरफ राइट भी है और ड्यूटी भी है। जब ऐसे ड्यूटी का ब्रीच होता है तो टॉर्ट कमिट होता है। एंड in this particular case there was a breach of duty and which resulted into the accident। for the driver's negligence his master was held vicariously liable because उन्होंने ही परमिट किया था। other instances of vicarious liability is based on the principle of cui facet per alium facet per se, which implies the act of an agent is act of principle। जो भी agent का act होगा वो ही principle का act भी होगा। which brings us to the relationship of principle and agent। Principle and agent is a very common principle, common relationship within the सब्जेक्ट ऑफ लॉ। प्रिंसिपल और एजेंट ऐसे कोई दो लोग हो सकते हैं जिसमें प्रिंसिपल एक सुपीरियर है और एजेंट उनके इन्फीरियर हैं या फिर सबऑर्डिनेट है। एजेंट प्रिंसिपल के हिसाब से एक्ट करते हैं, जो प्रिंसिपल कहता है उसके हिसाब से एजेंट चलते हैं और उनके हिसाब से ही काम करते हैं। ऐसे कोई भी दो लोग जिनमें से एक सुपीरियर है दूसरा सबऑर्डिनेट है और जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर के ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई कर रहा है, उन दोनों को प्रिंसिपल और एजेंट कहा जा सकता है। और कोई नेसेसरी क्वालिफिकेशंस नहीं होती हैं टू बिकम प्रिंसिपल एंड एजेंट, बट दिस सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट। कंसर्निंग द एक्ट्स विच आर ऑथराइज्ड बाय प्रिंसिपल एंड कैरिड आउट बाय एजेंट, बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट आर लाइबल। अगर हम एक्ट्स के बारे में बात करें जो परमिटेड एक्ट्स हैं, जिनको प्रिंसिपल ने परमिट किया और एजेंट ने कैरी आउट किया, इनमें दोनों ही लाइबल होल्ड होंगे। एंड इट शैल बी जॉइंट एंड सेवरल, मतलब दोनों की लाइबिलिटी और दोनों की अलग अलग से भी लाइबिलिटी। ए एंड बी आर टुगेदर लाइबल एंड ए एंड बी आर सेपरेटली लाइबल ऑल्सो। दैट्स वॉट इज मेंट बाय जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। इसके लिए केस पे नज़र डालते हैं। ऑमरोड वर्सेस क्रॉसवेल मोटर सर्विस लिमिटेड 1953 का केस है। जो कार ओनर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने कंपेनियन को, जो भी उनके साथ थे, कि वो गाड़ी चलाएं। जब गाड़ी चला रहे थे कंपेनियन, तो कोलिजन हो गया गाड़ी का बस के साथ, मतलब बस के साथ टकरा गई गाड़ी। इट वॉज हेल्ड कि फ्रेंड जो थे वो ओनर के एजेंट की तरह काम कर रहे थे और ओनर वॉज हेल्ड वाइकेरियसली लायबल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान पे अथॉरिटी इम्पोज कर रहा है या उसे ऑर्डर दे रहा है, तो इवेंचुअली जो ऑर्डर देने वाला इंसान है वो प्रिंसिपल बन जाता है और जो ऑर्डर कैरी आउट कर रहा है या उनके साथ कंप्लाई कर रहा है वो एजेंट बन जाता है। सो देर इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। द वन हु इज गिविंग द ऑर्डर इज प्रिंसिपल एंड द वन हु इज following those orders is the agent, and here the owner was held vicariously liable। अब बात करते हैं, जैसे कि पहले मैंने कुछ मिनट पहले बताया कि पार्टनर्स के बीच में भी वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अराइज करता है और इनमें भी जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी अराइज होती है ऑन द पार्ट ऑफ ईच पार्टनर। मतलब ए बी और सी मान लेते हैं तीन पार्टनर्स हैं, तो वो ए बी और सी तीनों साथ में भी लाइबल है और तीनों सेपरेटली भी लाइबल है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि कई बार मॉनेटरी या पेक्यूनरी डैमेजेस पे करने होते हैं, तो ए बी और सी साथ में भी पे कर रहे हैं और सेपरेटली भी उनको अपने पर्सनल अकाउंट से भी पे करना पड़ रहा है। उनको एक कंपनी अकाउंट से भी पे करना पड़ रहा है और उनको सेपरेटली इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उनको पे करना पड़ रहा है। सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज लाइक दैट ऑफ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल, मतलब कोई एक ऑर्डर देता है और दूसरा फॉलो करता है, तो लाइबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी की वजह से आती है। प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी इज जस्ट एजेंट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स। Concerning partnership firm, for the wrongs committed by one partner, all the other partners are equally liable for the act as the guilty partner। ये पार्टनरशिप के अंदर बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल, मतलब एवरी पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर because they are acting together, they are companions within an enterprise। so अगर कोई एक गलत करता है तो दूसरे पे आता है। so here the principle of vicarious liability arises। के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, या just to cite a judicial precedent, Hamlin वर्सेस Houston एंड कंपनी 1903 का केस है। दो पार्टनर्स थे डिफेंडेंट फर्म के, यानी ह्यूस्टन एंड कंपनी में दो पार्टनर्स थे। उनमें से एक जो था वो एक पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा था और उन्होंने
इवेंचुअली रिश्वत दी एक क्लर्क को, और ये क्लर्क जो था वो प्लेंटिफ ने अपॉइंट किया था, यानी कि हैमलिन ने अपॉइंट किया था। और ये जो क्लर्क है इसको परसुएट किया गया कि वो अपने एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करे, उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंप्लाई ना करे, और इवेंचुअली सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर दे रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयर्स बिजनेस, यानी कि हैम्बलिन के बिजनेस सीक्रेट्स को डिस्क्लोज कर दे। एंड इवेंचुअली इससे उसके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी होगा, बिकॉज देयर इज certain ethic that you have to follow, and you don't have to disclose the facts associated with the business. So here both the partners of the firm were held to be liable for such inducement of breach of contract which was committed by one of them. एक पार्टनर की गलती की वजह से दोनों पार्टनर्स के ऊपर लाइबिलिटी आई कंसर्निंग द इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उन्होंने इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है एंड उसे इवेंचुअली परसुएड किया है फॉर इट टू हैपन, फॉर द ब्रीच टू हैपन टू बी प्रिसाइज. So with this, we have discussed the principle of vicarious liability under torts law. I hope आपको समझ में आया हो ये principle and you were able to understand it to a larger extent. If someone has any doubt, they can leave in the comment section. I would be happy to answer them. Thank you so much for tuning in. Please make sure to subscribe to our channel if you like the content. Thank you so much.